اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اب تبلیغ میں دو گروپ ہو گئے، ایک حضرت مولانا اسعد صاحب کا گروپ ہے مرکز والوں کا، ایک گروپ شورا والوں کا ہے۔ اب حالانکہ دونوں کے کام لگ بھگ ملتے جلتے ہیں، بس وہ فضائل اعمال پڑھتے ہیں، منتخب حدیث پڑھتے ہیں، لیکن کا ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں۔ ہماری مسجد میں یہ والی جماعت شورا کی جماعت آ گئی تو ہم سامان پھینک دیں گے، لات گھونسے چل رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے تبلیغ کو مقید کر لیا کہ ہم جو کر رہے ہیں بس یہی تبلیغ ہے، یہی دین کا کام ہے۔ حالانکہ وہی تمہارے بھائی تھے، کل تک ساتھ میں کھاتے تھے، ایک ہی پلیٹ میں کھاتے تھے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ بھائی نہ وہ تبلیغ نہیں ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ تبلیغ ہے۔ کیوں؟ انہوں نے انبختی اختیار کری ہے مولانا اسعد صاحب کی۔ کس کی؟ مولانا اسعد صاحب کی۔ جبکہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ کیا ہے؟ مولانا اسعد صاحب گمراہ ہیں۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، میں دھڑلے سے کہہ رہا ہوں۔ آپ نیٹ پر جائیں، دارالعلوم کی ویب سائٹ پر لکھ کر ڈالیں کہ مولانا اسعد صاحب کے بارے میں دارالعلوم کا کیا فتویٰ ہے، کہ مولانا اسعد صاحب کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ وہ گمراہ ہیں، ان کی اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں، ان کے عقائد درست نہیں ہیں۔ قرآن کی، سنت کی وہ تشریح انہوں نے کی ہے جو آج تک کسی عالم نے نہیں کی ہے۔ حتیٰ کہ کئی اپنی تقریروں میں انہوں نے کیا کہا؟ نبی کی توہین کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے۔ کہاں گئے تھے؟ کوہ طور پر گئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون بھی نبی تھے، ان کے بھائی، ان کو چھوڑ کر گئے تھے کہ آپ قوم کو دیکھتے رہنا۔ کوہ طور پر خود نہیں گئے تھے، یہ بات یاد رکھیں، خود نہیں گئے تھے۔ کس نے بلایا تھا؟ اللہ نے بلایا تھا۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ اللہ نے بلایا تھا۔ تو حضرت مولانا اسعد صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو موسیٰ اصل تھے اور وہ کیا ہے، قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، یعنی وہ اور قوم گمراہ ہو گئی۔ موسیٰ اصل تھے، قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، قوم گمراہ ہو گئی، دعوت والا عمل چھوٹا۔ اور یہ بات تبلیغ والے ساتھی بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان کی غلطی نہیں پہچانو گی، غلطی ان کی ہے جو حضرت جی بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ حضرت جی کے انبھکت ہیں، حضرت جی کے انبھکت ہیں۔ غلطی ان کی نہیں ہے، غلطی ان کی ہے۔ ہم جیسے عالم کی ان کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہم بالکل گونگے شیطان بن جائیں ان کی بات پر، بالکل ہاں جی کچھ بھی کہتے رہیں تو ہم بہت بڑے حضرت بن جائیں گے۔ ہم منکر پر نکیر کریں گے تو ہماری ویلیو کچھ بھی نہیں ہے، ہماری ویلیو، اور ہم ان کے نزدیک اپنی ویلیو بنانا بھی نہیں چاہتے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ان کے ویلیو کی۔ تو دیکھیے مولانا اسعد صاحب کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ کیا ہے؟ گمراہ ہے۔ اب دیکھیے جس جماعت کا امیر گمراہ ہوگا تو جماعت کیا ہوگی؟ حق پر ہوگی۔ میں اپنی اس تقریر کے واسطے سے ان علماء کو سمجھانا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی تبلیغ پر فتویٰ نہیں ہے، فتویٰ صرف مولانا سعد پر ہے، لیکن آپ اس کا جواب دیں کہ جب مولانا سعد گمراہ ہیں دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے مطابق، تو مولانا سعد صاحب کو فالو کرنے والی جماعت گمراہ کیوں نہیں ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سمیر بھائی فرمائیے۔ کدھر ہے بھائی؟ ہوں تو ادھر ہی۔ آئیڈیا نہیں آ رہی آج کل۔ ارے بھائی پوچھو مت، بیچارے دیوبندی وہابیوں کی تو حالت پتلی ہو گئی ہے، سارا دن فون کر کے بیچارے فون ہی ریسیو نہیں کرتے ہیں، موبائل سوئچ آف کر کے رکھے رہتے ہیں، اور جو بھی کچھ ہوتا ہے تو گالی گلوچ کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کیا کریں بتائیے۔ کوئی جماعت والے نہیں آ رہے آج کل تمہارے پاس؟ جماعت والے بھی نہیں آ رہے، میں نے تو فون کیا تھا، جماعت والے بھی نہیں آئے، جماعت والے کو بھی میں نے لگایا تھا۔ تقریباً میں بتا رہا ہوں کل سنڈے کے دن میں نے یقین مانیے 50 سے بھی زیادہ کال لگائی تھی، 50 سے بھی زیادہ الگ الگ لوگوں کو کال لگائی تھی۔ میں منور بھائی کو لے کر لائن پہ لگایا تھا 1.5-2 گھنٹہ، لیکن کوئی ریسیو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، بات کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اور ساری چیزیں ہیں۔ دیوبندیوں کی بات کرنے سے کیا ہو رہا ہے کہ دیوبندیوں کی اب اصل چہرہ سب کے سامنے دکھنے لگا ہے نا، بڑا ان لوگ کو بے عزتی سہنا پڑ رہی ہے، تو اس لیے بات کرنے سے عاجز و کافر ہو گئے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا بھی تھا، میں نے ان کے مسجدوں میں جا کر جب میں نے بات کی تھی، ان کے بڑے بڑے مولوی جواب نہیں دے پا رہے تھے، ہے نا۔ تو جماعت والے بھی مل گئے تھے تم کو رستے میں؟ ہاں جماعت والے بھی رستے مل گئے تھے۔ جماعت والے سے یاد آیا صادق بھائی، ایک ویڈیو آیا تھا میرے پاس، بھیجا تم کو، دیکھے تم وہ ویڈیو مفتی یونس کا؟ ہاں وہ ویڈیو میری نظر سے گزری ہے، میں نے دیکھا تھا، گروپ میں بھی آئے تھے، اور میں نے کچھ دن پہلے بھی گروپ میں دیکھا، وہ یونس ساتھ میں لی نا، وہ جو مولانا صاحب کے تعلق سے بہت ساری باتیں اس میں کر رہا تھا۔ وہ تو بول رہے کہ تبلیغ جماعت والے گمراہ ہیں۔ ہاں وہی بات میں کہہ رہا ہوں نا سمیر بھائی، میں بھی تقریباً اتنے دن سے لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، حوالے دے کر کے، بات کر کے اپلوڈ کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی جو باتیں ہم کر رہے ہیں غلط نہیں کر رہے ہیں،
जो बातें मैं दिखा रहा हूँ कि गुमराह है तबलीगी जमात में, आप जाओगे तो नुकसान होगा, आप गुमराहियत के दलदल में जाओगे। कितनी आइडियोज मैंने तबलीगी जमात वाले के ताल्लुक से डाली है ना, तकरीबन 50 से ज़्यादा हो गई होंगी दोनों चैनल में मिला करके। तो जो हम दिखाते तो उनको तकलीफ होती है, लोग फ़ोन करके हमें बुरा भला बोलते हैं। तो मैंने सोचा कि समीर भाई इसी के ताल्लुक से कुछ मैं हवाला दूँ क्या? हाँ दे दो, मैं तो रिकॉर्डिंग भी लगाया हूँ। अच्छा, बहरहाल आप रिकॉर्डिंग लगाए तो उसको आप इसी ताल्लुक से कोई बात नहीं कर रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको आप अपलोड कर दीजिए और कुछ हवाले में देते हो उसको आप लगा दीजिए हवाला। हवाले ऐसे दो जैसे कि अब जैसे आप लोग ईद मिलादुन नबी मनाते हैं तो ये अपने को बोलते हैं कि बिदअत है बिदअत है, तो कुछ ऐसे हवाले निकालो। है तो ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बिदात नहीं है, लेकिन ये तबलीगी जमात वाले जो बिदात कहते हैं ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बिदात कहते हैं, हालांकि बिदात तो नहीं है। हाँ, इनकी तबलीगी जमात खुद बिदात है, मैं इनकी किताबों से दिखा दूंगा। मैं कुछ हवाले में देता हूँ आपको, ठीक है ना, उसको आप मैं भेजूंगा आपको, आप उसको स्क्रीन पर लगाइएगा। थोड़ा सा ये जो मुफ्ती यूनुस है उसके ताल्लुक से कुछ बता दो, मैं थोड़ा सा वीडियो भी काट के जो है दिखा दूंगा कि वो भाई देवबंदी जो है देवबंदियों को गुमराह बोल रहा है। हाँ, तो गुमराह बोल रहा है ना, तो वो अपने पास से नहीं बोल रहा है, आप सुनेंगे। एक तो दारुल उलूम का मोहतमिम है वो, और दूसरा वो दारुल उलूम का फतवा भी मेरे पास मौजूद है, ओरिजिनल फतवा है। अगर आप कहें तो मैं आपको हवाले देता हूँ, आप स्क्रीन पर लगा दीजिए। किसी को चाहिएगा तो मेरे पे फ़ोन करे तो मुझसे हवाला ले ले, वो बात दारुल उलूम देवबंद से ही कह रहा है, ठीक है ना। ये मौलाना साद गुमराह है। हाँ, देखिए मैं इबारत पढ़ के सुना देता हूँ, जो सिग्नेचर है वहाँ के दारुल उलूम देवबंद की मुफ्तियों के सिग्नेचर वगैरह सब है, कई सारे मुफ्तियाने इकराम के सिग्नेचर है देवबंदियों के, ठीक है ना। अच्छा, तो मैं इबारत पढ़ के सुनाता हूँ, उसने अपने पास से नहीं कहती, यही फतवा उसने पढ़ के सुनाया था कि नहीं सुनाया था, लेकिन उसने जो बात कही थी दारुल उलूम देवबंद के उसने कहा था कि नेट पर जाके देख लो, दारुल उलूम देवबंद का फतवा मौजूद है कि मौलाना साद गुमराह है। हाँ, अगर मेरे पास अगर कोई फतवा लेना चाहे तो मेरे पास ओरिजिनल फतवा मौजूद है दारुल उलूम देवबंद। आप मुझे भेज दो, मैं स्क्रीन लगा देता हूँ, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा 2 लाइन पढ़ के सुना देता हूँ। हाँ पढ़ दो, जिसको चाहिए तो मुझसे ले लेगा। जैसे कि उसने मुफ्ती यूनुस साहब ने बात कही थी मौलाना साहब के ताल्लुक से गुमराह है और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, सुनिएगा। देखिए दारुल देवबंद का फतवा लिखा है कि मौलवी मोहम्मद साद साहब जो गलत नजरियात और अखबार और अवाम नास में फैल चुके हैं उनके इस्लाह, ठीक है ना, उनके इस्लाह की भरपूर कोशिश करें। अगर उन पर फौरन गति ना लगाई जाए तो खतरनाक है और चलकर ये जमात वाबस्ता उम्मत का एक बड़ा तबका गुमराही का शिकार हो चुका है और फिरक़े ज़लाला का शिकार इख्तियार कर लेंगे। ये चिंता फिरक़े ज़लाला का यानी बिदअत ज़लाला का ये रूप इख्तियार कर लेंगे। ये फतवा दारुल उलूम देवबंद ने खुद दिया है और उनके तकरीबन 1 2 3 4 5 9 मुफ्ती लोग का सिग्नेचर है। यानी कि तबलीग जमात जो इस वक्त जो चला रहा है मौलाना साद, हाँ वो गुमराह है, ये दारुल उलूम देवबंद से साबित हो चुका है। हाँ, मौलवी ने जो वो मुफ्ती जो है वो ये भी कह चुका है कि जब इनका मौलवी गुमराह है तो इनकी जो इनको फॉलो करने वाले वो भी गुमराह है। हाँ, और ये गुमराह भी अपने पास से नहीं हुआ मौलाना साहब, इनकी किताबों में मौजूद है। जैसे कि मौलाना इलियास जो इसने दीनी दावत की मलफूज है, ये दीनी दावत नाम की मलफूज, जैसे कि मैंने बहुत सारे देवबंदियों की मैंने किताबों में सारे तबलीगी जमात वाले से बात करते हुए हवाला में मेरा यह मद्दवा कोई पाता नहीं है, लोग समझते तरीके गलत है। ये इबारत को पढ़ते हुए वो गुमराह हुआ है, ठीक है ना। तो इबारत को पढ़ते हुए गुमराह हुआ है और खुद गुमराह हुआ, फिर लोगों को भी गुमराह किया है। और इसमें फतवे के साथ साथ जो ये तो कुछ बातें उसने ऊपर लिखी है और फतवे के जो सिग्नेचर है वहाँ पर भी बातें हैं, लेकिन बहुत लंबी बात है कि अगर किसी को हवाला चाहिए तो मेरे नंबर पर फ़ोन कर सकता है और हवाले ले सकता है। चलिए, मैंने एक हवाला दिया समीर भाई, और ये मैं हवाले देता हूँ। जैसे कि आपने बिदात के ताल्लुक से पूछा था कि तबलीगी जमात वाले को बिदात कहते हैं ना, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तबलीगी जमात वाले बिदात कहते हैं ना। हालांकि ये तो बिदात नहीं है, लेकिन मैं इनके घर की किताबों से खुद इनका फिरका बिदात दिखा रहा हूँ कि इन्होंने खुद अपनी फिरकों को बिदात माना है।
जमात में जाना बिदअत है इनका। हाँ, जाने बिदअत है, फिरका ही बिदअत है। ये फिरका ही बिदअत है, फिरका वारिद फैलाना बिदअत है। और जैसे कि मैं एक किताब बता रहा हूँ, किताब का नाम है एहकामुत तबलीग, ठीक है ना। लिखने वाले का नाम है हज़रत मौलाना मोहम्मद फारूक साहब की किताब है, ठीक है ना। इसमें देखिए बिल्कुल वाज़ेह तरीके से सफ़ा नंबर 359 पर लिखा हुआ है कि आइम्मा और सलफ सालेहीन और उलमाए हक मतलब के मुताबिक क्योंकि एक चीज़ दीन के नाम पर फैल रही है, यही मेरे नज़दीक तमाम औकाफ और बुलाया के नज़दीक असल बिदात है। क्या है? असल बिदात है ये। इनके मुसन्निफ खुद मान रहे हैं, जिनका नाम है हज़रत मौलाना फारूक साहब, ठीक है ना। और भी एक दो हवाले कहिए, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। तो बिदात मान, हाँ, एक बहुत मजे की बात है, ये असफ अली थानवी के खलीफा खास, ठीक है ना समीर भाई। असफ अली थानवी के खलीफा, किताब का नाम है शहजादा तबलीग और लिखने वाले का नाम है काजी अब्दुल सलाम साहब, ठीक है ना। वो खुद कह रहे हैं, सफ़ा नंबर इसका है 77, उसमें ये खुद कह रहे हैं कि और हकीकत ये है कि अंदाज शरे बिदअत दलाला है। ये बहुत लंबी इबारत है, मैं थोड़ी पढ़ के सुना रहा हूँ, किसी को चाहिए तो मैं उसको ओरिजिनल स्कैन दे देता हूँ, ठीक है ना। और भी हवाले मैं देता हूँ, सुनिएगा। तो हम तो उसको बार बार कहते हैं कि भाई तबलीगी जमात में जाना सिर्फ गुमराहियत है और कुरान के भी खिलाफ है। अगर आप कहिए तो मैं कुरान की आयत भी इसको सुना देता हूँ। नहीं, एक दो हवाले और दे दो, जो पढ़ा था आपने वो, और एक दो हवाले और दे दो। अच्छा, एक दो हवाले मैं और बता देता हूँ तबलीगी जमात के ताल्लुक से, ठीक है ना। ये देखिए, जैसे कि ये लोग कहते हैं, आपने सुना होगा कि क्या सहाबा ने किया क्या, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया क्या, अगर नहीं किया तो बिदअत है, कहते हैं ना। ताल्लुक से बोलते हैं ये मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और भी कई सारे हमारे अमल है, जैसे कि मज़ार शरीफ पर चादर चढ़ाना और बहुत सारे अमल हमारे हैं, कई सारे अमल है हमारे जो हमारे किताबों में है। और जो खुराफात जो करते हैं अवामुन्नास, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो हमारे अमल है, ठीक है ना। जो उलमा करते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, बाकी वो खुराफात की बात नहीं करते, ढोल बाजे और मुहर्रम पर नाचना गाना, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। समझ रहे हैं आपको मेरे भाई ना। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, जैसे कि ये लोग कहते हैं कि बार बार कि नबी ने मनाया क्या ईद मिलादुन नबी में, हालांकि इनका सवाल ही जायज़ है। हमारा तो दावा ही नहीं कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुन्नत है, ठीक है ना। हम तो कहते हैं कि मुस्तहब, हाँ, जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुन्नत है, ठीक है ना। और ये लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट कहते हैं कि हमको कुरान और हदीस से दलील दो। अरे जनाब, हमारा तो दावा ही नहीं है ये सुन्नत से साबित है, हाँ, ठीक है ना। लेकिन ये लोग कहते हैं दलील दो पे, और फिर उसके बाद ये हुक्म लगाते हैं और हदीस पढ़ते हैं कि भाई जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं है तो वो बिदअत है। जैसे हदीस पढ़ते हैं, कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, है ना। हालांकि ये जहन्नम में ले जाने वाली। हालांकि ये जाहिल को नहीं मालूम कि बिदअत अमली के ताल्लुक से नहीं है, बिदअत एतकादी के ताल्लुक से। बिदअत अमली के ताल्लुक से अगर कहेंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे ऐसे अमल है, अरे बहुत सारे हदीस में मिल जाएगा आपको कि जिसमें अमल करने का, इजाद करने का कुछ हुक्म दिया है। तो उन हदीस को क्या करोगे? सही मुस्लिम वगैरह में, सुनने इब्न माजा वगैरह में बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज है, मैं उधर नहीं जाता हूँ। तो एक हवाला मैं और पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है ना समीर भाई। किताब का नाम है इंकिशाफ हकीकत, लिखने वाले का नाम है हज़रत मौलाना अबुल फजल अब्दुल रहमान, ठीक है ना। हेलो, जी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, वो लिखते हैं सफ़ा नंबर 41 पर, कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि बिल्कुल वाज़ेह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा इकराम ने कभी किसी मुसलमानों में इसी तरह का काम नहीं किया। और ये बात मैं बार बार कहता हूँ कि कौन से सहाबा जो थे, जो मुसलमान के घर गए थे, वो किसी साथी के घर गए थे वो दावत लेकर के, और ये बात खुद इनका मुसन्निफ भी मान रहा है, ठीक है ना। ये बात मैं बार बार कहता हूँ, फिर तो सुना रहा हूँ। कहते हैं कि पहली बार ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा इकराम में से कभी भी किसी मुसलमान में इस तरीके का काम जो ये जमात करती आई है, कर रही है,
نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی کسی مسلمانوں میں نماز کی دعوت کے لیے گشت نہیں کیا. ٹھیک ہے نا, سن رہے نا سمجھ بھائی, مسلمانوں کی نماز کے لیے گشت کی دعوت گشت نہیں کیا, اور نہ کسی صحابہ اکرام نے نہ کبھی کسی گشت کیا, اور نہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ اکرام نے کسی جماعت کو مسلمانوں میں دعوت کا کام کرنے کے لیے بھیجا. سن رہے ہیں آپ نا؟ یہی بات میں بار بار کہتا ہوں کہ کیا کبھی صحابی نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو بھیجا تھا کہ تم جاؤ نماز کی دعوت لے کے لیے؟ یہی بات ان کا مصنف بھی مان رہا ہے. پھر میں کہتا ہوں تو پھر یہ لوگ کو مرضی لگتی ہے. ٹھیک ہے نا, آگے سنیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دعوت دینے کے لیے نہیں بھیجا, اور اگر مسلمانوں میں بھیجا ہے تو ان کی تعلیم کے لیے بھیجا ہے. صرف بھیجا ہے تو ان کی تعلیم کے لیے بھیجا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو ان کی تعلیم کے لیے, دعوت کے لیے. اسلام کی دعوت تو وہ لوگ تو پہلے ان کو مل چکی ہے. الحمدللہ ہم کو تو اسلام کی دعوت پہلے مل چکی, ہم تو مسلمان ہی ہیں. ان کو دعوت تعلیم کی کرنی چاہیے تھی, ان کو تعلیم کے لیے آنا چاہیے تھا. اگر یہ دعوے دار ہے دین کی حفاظت کے لیے, اپنے بہت بڑے دین کا کام کرنے کے لیے دعوے دار ہے, تو ان کو تعلیم کے لیے آنا چاہیے. اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں, اسلام کی دعوت لے گئے تھے. ارے جناب, اسلام کی دعوت تو آلریڈی وہ تو مسلمان ہی ہے, دعوت کس کے پاس لے کے جائی جاتی ہے؟ میں نے سنا ہے کہ مسلمان نہ ہو. ان لوگ جو ہے کشف کا سہارا لے کر جو ہے نا یہ لوگ تبلیغ کرتے ہیں. ہاں ہاں, وہ بھی میں بتا رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, وہ بات آپ نے کہی تھی تو اس کے بعد سے مجھے ایک کتاب یاد آ گئی. ٹھیک ہے نا, لیکن میں بھی بتا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے نا, سچ کا سہارا لیتے ہیں, بہت ساری بڑی بڑی بھائی ہم کو الہام ہوا ہے کہ اتنے لوگوں کو لے کے چلے جاؤ, اسی چھوٹی چھوٹی باتیں پھیلاتے رہتے ہیں. ہاں ہاں, اوکے, حوالہ میں پڑھ کے سنا رہے جو آپ نے کٹ کے تعلق سے بات کہی تھی نا, تو ہاں دیکھیے ایک اور حوالے میں پڑھ کے سنا. کتاب کا نام ہے کشف الغفا. ٹھیک ہے نا, وہی کتاب ہے کشف الغفا, حضرت مولانا ابو الفضل عبد الرحمان. ٹھیک ہے نا, وہی عبارت میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. صفحہ نمبر 81 میں ہے, لکھا ہے کہ لیکن بانی جماعت کی گمراہی, خود کہہ رہے بانی جماعت کی گمراہی, یا کاندلی تھا کو کہہ رہے. ٹھیک ہے نا, گمراہی غلط فرمائے. اصلی جہاد ایک اجتماع طریقہ کو قرار دیتے ہیں, اور اصلی جہاد کے خلاف ذہن سازی شروع کر دی. قرآن کے ایک صریح حکم کے خلاف ذہن سازی کر کے تبلیغی جماعت کہلائے. ہاں, کفر تبلیغی جماعت کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں, کفر تبلیغی جماعت کہہ سکتے ہیں. وہ خود اپنی جماعت کو کفر کہہ رہے ہیں. اچھا, ہاں, اب بتائیے, ہم کہیں گے بھائی تم بدعت, یہ تبلیغی جماعت بدعتی ہے تو بہت نشی لگتی ہے. ٹھیک ہے نا, بار بار کہتے ہیں نہیں تم غلط کہہ رہے ہو, ایسا ہے ویسا ہے. بھائی ان کی کتابوں سے سب پڑھ کے دکھا دیں. بھائی رہی بات قرآن حدیث سے, الحمدللہ میں قرآن اور حدیث سے میں دکھاؤں گا کہ یہ کتنی بڑی گمراہ ہے, قرآن کے خلاف اور حدیث کے خلاف بھی ہے. میں نے عبارت پڑھ کے سنائی تھی جو کہا تھا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی صحابہ نے کسی کو بھیجا ہے مسلمانوں میں گشت لگانے کے لیے, اسلام کی دعوت دینے کے لیے. ہاں, تعلیم کے لیے بھیجا ہے نا. اچھا, جیسے کہ آپ نے ذکر کیا تھا کشف کے تعلق ہے نا پہلے, تو اس کا بھی حوالہ میں دے دیتا ہوں, سنیے گا ذرا. کشف کے تعلق سے وہی کتاب ہے انکشاف حقیقت, حضرت مولانا ابو الفضل عبد الرحمان. کتاب کا نام انکشاف حقیقت, صفحہ نمبر 90 پر ہے. لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہیں ارشاد نہیں فرمایا کہ اس طریقے سے تبلیغ جماعت نکالنے, اس طریقے سے جماعت میں نکلنے کا حکم نہیں دیا, اور قصد شدہ طریقہ کو صریح اللہ تعالیٰ کا حکم کہہ رہے ہیں. ہاں, بلکہ قصد کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں. سن رہے ہیں نا, قصد کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں, یہ بھی نہیں معلوم کہ قصد رحمانی ہے یا قصد شیطانی ہے. حالانکہ یہ کشف شیطانی ہے, میں قرآن حدیث سے ثابت کروں گا. کشف رحمانی بالکل نہیں ہے, اور ان کو بھی اس بات کا بالکل واضح ثبوت ان کو مل رہا ہے, تبھی جماعت سے اعتراض کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, عبد الفضل رحمان صاحب کو تبھی میں اس بات کو کہہ رہے کہ ان کو بھی معلوم نہیں کہ کشف رحمان ہے یا کشف شیطانی ہے. ہاں, ایسے دلی اور مشروع کشف کو اللہ تعالیٰ کا حکم کہنا بالکل غلط ہے, اور ان کا کام ضروری سمجھنے کی وجہ سے بدعت ہے.
इनका काम समझने की वजह से ये बिदअत है। मीर फरमाया कि असली काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। हाँ, अजीज फरमाया कि असली काम नहीं हुआ। ये मैंने कष्ट के ताल्लुक से बताया, खुद मान रहे कि ये कष्ट शैतानी है या कष्ट रहमानी है। हाँ शैतानी है। हम तो कहते हैं क्या कष्ट है ना शैतानी है। सादिक भाई, इनके हाँ। अमीर होते हैं जो जिनको अमीर बना दिया जाता है, तो मंथली पेमेंट दी जाती है बाकायदा। बिल्कुल दी जाती है। आप मैं इस पर चैलेंज करता हूँ, कोई आके बात करे, मैं दिखाऊंगा सैलरी मिलती है नहीं मिलती है बाकायदा। मैं कुछ बातें यहाँ पे कुछ ढकी चुकी मैं बातें इनके अंदर की मैं जानता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। क्यों इन लोगों को, इन लोग काम कैसे करते हैं, इनको एक मस्जिद में बुलाया जाता है और किसी इलाके में जहाँ बरेलवी हजरात ज़्यादा रहते हैं, अहले सुन्नत व जमात ज़्यादातर रहते हैं, देवबंदी नहीं रहते हैं, तो उनको बड़े बड़े घरों को जो अमीर लोग अमीरजादे रहते हैं, पहले उनका पता लगाया जाता है। पता लगाकर उनके नाम नंबर निकाले जाते हैं, नंबर नहीं तो नाम ही तय निकाल करके उनकी लिस्ट तैयार की जाती है। ये सब मेरी आंखों की बात है, ये मैंने किसी से सुना नहीं है, मैंने बाकायदा जाकर की तहकीक के मैंने देखा है। उनको लिस्ट दी जाती है, उसको एक जमात का अमीर मुकर्रर किया जाता है, मुकर्रर करके उस इलाके में भेजा जाता है। फिर वो जो अमीर होता है वो 4-5 को लेके जाता है और एक एक को पकड़ता है। जितने भी होते हैं उस इलाके में 2 हो गए, 8 हो गए, 10 हो गए, वो एक को भी पकड़ लेता है तो उसका काम बन जाता है, उसको गुमराह करके निकल जाता है। फिर वो धीरे धीरे अपना काम करते जाता है। मिसाल के तौर पर एक मिसाल कही जाती है ना कि एक गंदी मछली सारा शराब को गंदा कर देती है। ये बस अपना काम करके निकल जाते हैं, उनको इस बात की सैलरी दी जाती है। वल्लाह बिल्लाह अल्लाह की कसम खा कहता हूँ, ये मैंने देखा है और मैंने किसी सुना नहीं है, वो खुद कहते हैं। वो खुद कहते हैं कि अब आप बताइए, इस ज़माने में इतनी महंगाई का दौर है, कुछ मैं दुनियावी बात कर रहा हूँ, इतनी महंगाई की बात है, मैं आपसे कहूँगा समीर भाई 1 महीने के लिए आप चलेंगे क्या? आप मेरे साथ चल जाएंगे क्या? नहीं भाई, फिर घर कैसे चलेगा? वही तो मैं कह रहा हूँ, घर कैसे चलेगा? आज के ज़माने में महंगाई का दौर है, लोग 1 हफ्ते नहीं जा सकते हैं, लोग 40-40 दिन चले जा रहे हैं, 4-4 महीने चले जा रहे हैं। किसके पास इतना पैसा पड़ा हो? लोग का हाल देखिए, घर में खाने को नहीं है, थोड़ा भी करने के घूम रहे हैं। बताइए, ये बात हकीकत है। जी जी सही ये बात। मजाक में बात है, सीरियस बात है समीर नहीं भाई। भाई, कितने आइडियो सुना है अपन ने, अपलोड भी किए हैं, कितने अहले हदीसों ने भी कबूल किया है कि हम लोगों को पैसा मिलता है। हाँ, बस मतलब जैसे बल्कि तो मैं कहता हूँ कि एक मलफुतात हकीमुल उम्मत में जिल्द नंबर 2 में उसने खुद ये बात कही है अशरफ अली थानवी ने कि अगर मेरे पास 10,000 रुपया होता तो मैं सबको वहाँ भी बना देता, मैं सबकी तनख्वाह कर देता, लोग देखो कैसे वहाँ भी बनते हैं, है ना? सही बात है, हवाला है। हाँ, तो वो तो सैलरी पे काम चलते, जाहिर सी बात है, उसको पैसे मिल होता तो वो करता। वो तो भिखारी था, वो तो मुर्दी को पैसे खाया करता था, बाप की कमाई खाया करता था। को 600 रुपये महीना मिलता था। हरामी अंग्रेजों की तरफ से अशरफ अली थानवी को 600 रुपये महीना मिलता था। हाँ, आज के दौर में देखा जाए तो कम से कम 80-90 हज़ार 1 लाख रुपया हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और लिखने वाले मकाले मुस्तदरैन में कहते हैं कि भाई उनको कहाँ से आता था पता नहीं चलता। अब समीर भाई आपके पास अगर हर महीने 10,000 रुपये आएंगे तो आप उसकी इंक्वायरी नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हलाल के है या हराम के है, पहले तो करना पड़ेगा ना। क्योंकि मैंने एक इससे पहले महीने 2 महीने पहले आईडियो डाली थी जो उसमें कहता है कि मैं हराम और हलाल में मैं फर्क नहीं करता, ज़्यादा फर्क नहीं करता, क्योंकि मैं मुत्तकी और परहेज़गार नहीं हूँ। क्योंकि मैं मुत्तकी नहीं निकल, मैं तो वादा खुल के बता रहा हूँ कि ये तो हराम को था। बहरहाल बात दूसरी तरफ जा रही है। तबलीगी जमात के ताल्लुक से मैंने कुछ हवाले दिए हुए हैं। हाँ। और अगर चाहिए तो और भी हवाले में आपको नहीं, वो सारे हवाले आप भेज दो, मैं लगा दूंगा इंशाल्लाह। अगर आपको और भी कोई सवाल है इस ताल्लुक से तो पूछिए, मैं बता देता हूँ। फिलहाल तो हो गया है, इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे इस ताल्लुक से, अगर देखेंगे पब्लिक पसंद कर रही है। तकरीबन मेरे पास 50 हवाले हैं। अगर आपको कोई फ़ोन करता है हवाले के लिए तो आप मुझे मेरा नंबर दे दीजिए। नहीं, जो आपने हवाले पढ़े हैं ना वो हवाले मुझे भेज दिए, फिर इंशाल्लाह बनाएंगे। हाँ, मैं सारे हवाले अब सेंड कर देता हूँ, आप उनको स्क्रीन पर लगा दीजिए और उसके बाद में कोई भी देवबंदी हो तो उसको अगर इस हवाले पर इश्काल हो तो मुझसे बात कर सकता है। मेरा नंबर स्क्रीन पर डला होगा, ठीक है ना? ठीक। मेरा नाम सादिक अली अंसारी, सुन्नी हनफी बरेली गुजरात सूरत से, ठीक है ना? मेरा नंबर पर डला होगा स्क्रीन पर। अगर किसी को हवाले पर एतराज़ हो कि मैंने गलत हवाले दिए, गलत पढ़े हैं, ठीक है ना, या फिर अपने तबलीगी जमात के दिफा के लिए फ़ोन कर सकता है, मुझे इस पर बात कर सकता है। हाँ, गाली को हवाले देंगे कि तुम्हारी तबलीग जो तुम जाते हो तबलीग जमात में ये गुमराह है और बिदाती जमात है। और ये तुम्हारे घर के उलमा और तुम्हारे घर की तहरीर और कुरान अपना ये तुम्हारे घर की तहरीरों से साबित है।
तकरीरों से हाँ, सही तहरीरों से साबित और बिल्कुल खुले अल्फाजों में साबित है। प्लस अभी मैंने कुरान हदीस तो यहाँ पर बयान ही नहीं किया। अगले पार्ट में इंशाल्लाह जो बाकी बचे हुए हवाले हैं और वो कुरान की आयत हाँ। हदीस शरीफ इंशाल्लाह अगर चल गया हमारे सुन्नी भाइयों ने इसको अगर शेयर कर दिया ज़्यादा तो नेक्स्ट पार्ट भी अपन बनाएंगे, अगला पार्ट। जरूर जरूर इंशाल्लाह मैं अगले ऑडियो में पार्ट 2 में मैं बिल्कुल खुले अल्फाज की आयत के पेश करूंगा, जहाँ पे बिल्कुल खुले अल्फाज में, ऐसा नहीं कि मैं कयास करके बताऊंगा, नहीं ऐसा नहीं वैसा है, जो कुरान में है वही चीज तुम्हारे अमल में दिखाऊंगा, तुम्हारे अकीदे में दिखाऊंगा, ठीक है ना। कुरान की आयतें मैं पेश करूंगा, हदीस शरीफ पेश करूंगा। नेक्स्ट टाइम अगर कोई बात करना चाहे तो इनकी गुमराह जैसे बहरहाल मैं एक आयत पढ़ देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। ठीक है, पढ़ दो। एक आयत मैं पढ़ देता, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया कि कू अनफुसकुम व अहलियकुम नारा, ऐ ईमान वालो तुम अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ, ठीक है ना। लेकिन ये देवबंदी क्या करते हैं, देवबंदी बन के बुरा विचार लेके निकल जाते हैं कुरान के खिलाफ। हालांकि कुरान क्या कहते हैं, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। अगर तुम ये मानते हो कि हम जहन्नम की आग से बच गए हैं, हम नमाजी हो गए, परहेजगार हो गए, तो तुमको तो सबसे पहले जिम्मेदारी थी कि तुम्हारे सब घर वाले पहले जन्नती हो जाए, ठीक है ना। अगर तुम मानते हो तो। लेकिन हम देखते थे तबलीगी जमात में इनकी लड़कियां ऐसे बिना पर्दे के घूमते रहती। वल्लाह बिल्लाह मैं कसम खा कहता हूँ कि मैंने अपनी आंखों देखा, इनकी लड़कियां खुद छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमती हैं और बगैर दुपट्टे घूमती हैं। इनकी माएँ, इनकी औरतें घूमती है बगैर दुपट्टे के, और ये कहते हैं कि हम हिदायत से आ गए। हमारी औरतों को देखो बेपर्दा घूमती है, सुन्नियों को बदनाम करते हैं लोग। चलिए बहरहाल बात हुई समीर भाई, ठीक है ना। मैं हवाले सेंड करता हूँ, ठीक है ना। ठीक। आप उसको अपलोड करिए और किसी को बात करना हो तो मेरे इस नंबर पर फ़ोन करें, ठीक है ना। ठीक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।